بسم اللہ الرحمن الرحیم. میس کمیونیکیشن اور جرنلزم کا یہ چوتھا لیکچر ہے جس میں ہم نیوز پیپر کے حوالے سے بات کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے ایک نیوز پیپر میں میجر سیکشنز کون سے ہوتے ہیں, اس کی کیا ہسٹری رہی ہے, ایک نیوز ایجنسی اور ایک نیوز پیپر چلانے والا پبلش کرنے والا جو ادارہ ہے اس کے کیا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, نیوز پیپر کی کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور نیوز ایجنسی ہم کس کو کہتے ہیں. میرا نام سمیرہ لیاقت ہے. میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں, اور سی ایس ایس 2015 میں نے کلیئر کیا تھا, میری ایجوکیشن ہوئی. آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اس میں تمام وہ لیکچرز ہیں جو کہ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہیں, اور ہم دیگر لیکچرز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے نیوز پیپر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. نیوز پیپر کوئی بھی ایسی ریٹن پبلیکیشن جس میں نیوز موجود ہوتی ہے, کوئی انفارمیشن یا نئی بات موجود ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری چیز, اس میں ایڈورٹائزنگ کے آبجیکٹس یا ایلیمنٹس موجود ہوں, یعنی کوئی چیز کسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ موجود ہو. تیسری چیز, اس کے لیے پرنٹ ہونا ضروری ہے, یہ پرنٹڈ فارم میں ہونی چاہیے. اور چوتھی اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ ایک لو کاسٹ پیپر پہ پرنٹ کیا جاتا ہے. تو آپ نے کبھی نیوز پیپر کے پیپرز کو دیکھا ہوگا تو وہ پیپرز بھی بہت الگ کوالٹی کے نہیں ہوتے. نیوز پیپر کی کوالٹی کا جو پرنٹ کا پیپر ہوتا ہے وہ بہت لو کوالٹی کا ہوتا ہے. ایسی تمام پبلیکیشن کو نیوز پیپر کا نام دیا جاتا ہے, اور اس کے 3 آبجیکٹیو ہوتے ہیں: لوگوں کو انفارم کرنا, انہیں انسٹرکٹ کرنا, انہیں بتانا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کسی خاص موقع مناسبت کے لحاظ سے, اور انہیں انٹرٹین کرنا, ان کی لوگوں کی ریڈرشپ کو بڑھانا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اخبار کو خریدیں. اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: کوئی بھی پیس آف رائٹنگ جو کہ پرنٹڈ فارم میں ہو, پرنٹ کی گئی ہو, اس پہ ڈیٹ لازمی ہونی چاہیے. یہ ریگولر انٹرول یا ریگولر بیسس پر ہو, روزانہ کی بنیاد پر ہو, یا پھر اگر یہ انٹرولس میں ہو تو فریکوینٹ انٹرول کی پبلیکیشن ہو, یعنی جیسے کہ ویکلی یا بائی منتھلی یا منتھلی, اس طرح کی پبلیکیشن ہو. اور اس میں نیوز آئٹمس کئی ڈھیر ساری موجود ہوں جو کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہو سکتی ہیں. اس کو نیوز پیپر کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ ٹاپک جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں, اسی ٹاپک کو سامنے رکھ کر نیوز پیپر, ایک پورے کمپلیٹ نیوز پیپر کو مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی انفارمیشن اکٹھی نہیں کر دی جاتی بلکہ ان کو سیپریٹ پارٹس میں یا پیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جیسے ویدر کی نیوز آپ ایک سیکشن کے اندر دیکھیں گے. کالمز اور ایڈیٹوریل کے لیے یوزلی ایک مڈ والا پیج جو ہے اس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے. نیشن وائز نیوز الگ ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنل نیوز جن کو فارن نیوز بھی کہا جاتا ہے وہ الگ ہوتی ہیں. بزنس نیوز ضرور دی جاتی ہیں کیونکہ بزنس مین بہت زیادہ اخبار پڑھتے ہیں. فیچرز, کالمز یہ لازمی لکھے جاتے ہیں, یہ ان کا مقصد انفارم کرنا اور انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. بچوں کا سیکشن بھی الگ رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں میں ریڈرشپ جو ہے وہ بھی بڑھے, اور انٹرٹینمنٹ کے ایلیمنٹ کو بھی ساتھ میں رکھا جاتا ہے جس میں آپ سپورٹس کو دیکھتے ہیں, شوبز سے متعلق معاملات ہوتے ہیں اور ان کی خبریں موجود ہوتی ہیں. تو یہ میجر پارٹس ہیں یا سیکشنز ہیں ایک نیوز پیپر کے جو کہ میجورٹی اور زیادہ تر نیوز پیپرز میں موجود ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کر لیں تو اس کی شروعات ہوتی ہے انیشیل پیریڈ میں روم سے اور چائنا سے. تو گورنمنٹ کے جو آفیشلس تھے جب وہ اپنے نیوز کو اناؤنس کرنا چاہتے تھے یا اناؤنسمنٹ دینا چاہتے تھے تو نیوز کو اکٹھا کیا جاتا تھا. ایکٹا ڈائورنا کا نام دیا جاتا تھا, اور انہیں اسے پتھروں پر کریو کر کے پبلک پلیسز پہ لگا دیا جاتا تھا. اس طرح پبلک انفارم ہو جاتی تھی کہ ان کی گورنمنٹ یا ان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس نیوز پیپر یا اس طرح کی نیوز کی سرکولیشن کا جو وے ہے وہ چینج ہوا جب چائنا نے پیپر نکالنا شروع کیا اور لکھ کر نیوز کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا. تو گورنمنٹ نیوز شیٹس ہوتی تھیں جن کو ٹپاؤ کا نام دیا جاتا تھا. یہ کورٹ آفیشلس میں سرکولیٹ کی جاتی تھیں. 712 سے میں اور 734 میں چائنیز کا جو ایک ڈیناسٹی ایک دور گزرا ہے جس کو ٹینگ ڈیناسٹی کہا جاتا ہے, یہ کافی جدت پسندی لے آئے تھے اس میں, اور انہوں نے گورنمنٹ کی جو نیوز تھی ان کو باقاعدہ پبلش کرنا شروع کیا تھا, اور یہ پبلش کرتے تھے سلک کے کپڑے کے اوپر ہاتھ سے لکھ کر. یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک نیوز پیپر کی, اور اس کی اہمیت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی کہ آج ہم ڈیلی ایک نیوز پیپر اپنے گھر میں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آج کا نیوز پیپر ہے وہ بیسک بلانگ کرتا ہے, وہ اس ریٹن سلک کے کپڑے پہ نہیں لکھا آتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیپر کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا نیوز پیپر اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے, یہ جو ہسٹری میں دکھایا جاتا ہے وہ جرمن اورینٹڈ تھا. یہ بیسک اس کا جو نام تھا وہ ریلیشن ایلر فرنمن اونڈ گیٹن ویورڈیگن
हिस्टोरियन के नाम से था। 1605 में इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया और इसका जो मकसद था वो ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं और जो नई इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाया जाए। ये पहले न्यूज़पेपर का मकसद भी था और लोगों को सर्कुलेट भी इसी से किया गया। इसके बाद न्यूज़पेपर हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी पहुंचा और इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानें तो हम ये देखते हैं कि 1780 जनवरी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकी बंगाल गैजेट इंडिया में शुरू किया था। इसका जो साइज था वो सिर्फ 4 पेजेस का था और 12x8 इसका एक साइज होता था जो आपको साथ पिक्चर में भी नजर आ रहा है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी इसलिए क्योंकि हिकी ने इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के करप्शन और उसके लोगों के हवाले से बहुत सारी बातें और न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना शुरू की थी और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पीपल कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द सब कॉन्टिनेंट। रिटेलिएशन होती है और इसके बाद इस गजट को बंद कर दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस से ये लोगों तक पहुंचा करता था लेकिन बाद में हिकी को लेबल का सामना करना पड़ा, डेफेमेशन का सामना करना पड़ा और ये अखबार जो था वो बंद कर दिया गया। लेकिन इसने नए अखबार की राहें खोल दी थी। नवंबर 1780 में इंडिया गजट जो था वो सामने आया और कंपनी जो थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई न्यूज़पेपर निकलता है और लोगों तक पहुंचता है तो हमारे जो कारनामे हैं जो हम काम कर रहे हैं वो भी लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इन्होंने 1780 में ही नवंबर में ही इंडिया गजट के नाम से एक न्यूज़पेपर जो है वो जारी करना शुरू किया। इसके बाद एक सिलसिला चलना शुरू हो गया न्यूज़पेपर का। विलियम ड्यून इन्होंने इंडियन वर्ल्ड के नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला जिसमें प्रेस की फ्रीडम के हवाले से काफ़ी बातचीत की गई। इसके बाद ये बड़ा ऑथेंटिक और एक बड़ा ओपन क्रिटिकल न्यूज़पेपर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम करप्शन को शो करता था, दिखाता था और लोगों का ज़ाहिर इंटरेस्ट भी इसी चीज़ में था। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने इसके बाद एक के बाद दीगरे 2 न्यूज़पेपर्स निकाले ताकि इंडिया गजट के नाम की तर्ज का एक और न्यूज़पेपर ताकि इंडियन वर्ल्ड को काउंटर किया जा सके और उसके अगेंस्ट कोई जवाब लोगों तक पहुंचा जा सके। इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स जो थे वो फिर कलकत्ता में, बॉम्बे, मदारस हर जगह पे शुरू हुए। इनका जो सब्जेक्ट टॉपिक्स थे वो मुख्तलिफ नौयत के थे। कुछ में पोइट्री, टेल्स, छोटी छोटी कंपोजिशन, शॉर्ट स्टोरीज दी जाती थी। पर्शियन स्टोरीज ट्रांसलेट करके दी जाने लगी लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। लोगों की तबीयत और उनकी टेस्ट के मुताबिक न्यूज़पेपर्स को डेवलप किया जाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर का हिस्सा बन गया जिसके अंदर और इस न्यूज़पेपर का एक मकसद और भी था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मिस्चीवियसनेस जो है वो उस वक्त के लोगों तक पहुंचाई जाए और उन्हें बताया जाए कि आपके ऊपर जो आपके आका आ चुके हैं वो क्या काम कर रहे हैं। उर्दू न्यूज़पेपर्स की जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ से शुरू होती है और इसका सबसे पहला अखबार जो है वो जामे जहां नुमा है और जामे जहां नुमा पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था जो कि कलकत्ता से 1822 में ब्रिटिशर्स की ही सुपरविजन में निकाला गया। एडिटर इसके मुंशी सदा सुख थे और कुछ हफ्ते जो है वो ये चला रहा या कुछ हफ्ते तक ये जब इसको गुजर गए तो इसकी जो लैंग्वेज थी उसको पर्शियन में चेंज कर दिया गया। ठीक है क्योंकि इसकी सर्कुले और लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि जो इसकी सर्कुलेशन थी वो बहुत लो थी और कोशिश ये की गई कि पर्शियन में इसको तब्दील करके इसकी सर्कुलेशन को बढ़ाया जाए। सर्कुलेशन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको सर्कुलेट करना। तो कुछ हफ्तों के बाद इसे चेंज कर दिया गया उर्दू से पर्शियन के अंदर। फिर एक और अखबार सामने आता है कलकत्ता में ही 1822 में मिरतुल अखबार। ये पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था जिसकी शुरुआत ही पर्शियन लैंग्वेज से हुई थी। इसके जो एडिटर थे वो राजा राम मोहन राय थे और फिर यहाँ से न्यूज़पेपर्स, उर्दू न्यूज़पेपर्स और पर्शियन न्यूज़पेपर्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दिल्ली और लाहौर में अगर हम प्रेस की एक तारीख को देखें तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली उर्दू अखबार पहला अखबार था जो कि 21 साल तक चलता रहा बड़ी कामयाबी के साथ। मौलवी मोहम्मद बाकर जो थे उसके एडिटर थे। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो कि खुद इनके बेटे थे, उन्होंने इसकी एडिटरशिप संभाली। जो दिल्ली उर्दू अखबार का पहला पेज था वो बहादुर शाह जफर के कारनामों और उनकी एक्टिविटीज से हमेशा रिलेटेड होता था और लोग उसे बहुत शौक से पढ़ते थे। इसके बाद एक ऑड जो थी वो हर इशू में रखी जाती थी। एक
कहावत, एक कहानी जो लोगों को पसंद आए, इस किस्म की जो चीज़ें थी वो दिल्ली के इस अखबार में रखी जाती थी। इसके बाद सईद उल अखबार 1837 में सामने आता है। ये सैयद मोहम्मद खान जो थे उन्होंने निकाला था, और ये सर सैयद अहमद खान के अपने सगे भाई थे। 1950 में सैयद उल अखबार जो था वो बंद हो गया, क्योंकि एक अखबार को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, और ये फाइनेंशियल इश्यूज उनको नज़र आए, क्योंकि वो इसको चला नहीं पाए। फिर पहला उर्दू न्यूज़पेपर जो था वो कोहे नूर के नाम से 1850 में हमारे सामने आता है, और ये लाहौर से पब्लिश होना शुरू हुआ। मुंशी हरसुख राय जो थे वो उसके फाउंडर थे, और ब्रिटिशर्स जब उनका इन्वेजन हुआ है, वो दाखिल हुए हैं पंजाब में, तो उस टाइम ये अखबार जो है वो निकाला गया। यानी मुंशी हरसुख राय जो थे उसके फाउंडर थे, वो स्पेशली कॉल्ड, और इस काम के लिए खास तौर पे मुंशी साहब को बुलाया गया था, और ब्रिटिशर्स ने खास तौर पे इस बात के लिए बुलाया था कि वो उर्दू का इस किस्म का न्यूज़पेपर निकालें। पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस अखबार की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार था। सेकंड, और जो दूसरा चीफ न्यूज़पेपर लाहौर से निकाला, वो दरियाए नूर था। इसको भी कंडेम किया गया ब्रिटिश रूल की तरफ से, इसलिए ये ज़्यादा नहीं चल सका। इसको फोरफीट कर दिया गया, बंद कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से। और इसी तरह कई न्यूज़पेपर सामने आए जो कि या तो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं चल सके, या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की वजह से उनको बंद कर दिया जाता था। अगर हम उर्दू जर्नलिज्म को सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हमें साथ नजर आते हैं। हमें पता चलता है कि जर्नलिज्म क्यों फली फूली, कुछ वजूहात की वजह से। जैसे 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी। तो उर्दू की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ना शुरू हुई। यही वजह थी कि अखबारात का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला गया। फिर 1835 में बहुत से जो रीजनल बहुत से न्यूज़पेपर्स थे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में थे, वो भी सामने आए। उसमें उर्दू का जो न्यूज़पेपर था वो ज़्यादा अहमियत इसलिए इख्तियार कर गया क्योंकि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ था। बाद में ये कदर कंट्रोवर्सी है कि उर्दू के खिलाफ एक मुहिम चलना शुरू हुई, और फिर उसको दफ्तरी ज़बान से हटा दिया गया था, लेकिन उर्दू की अहमियत जो थी वो बड़ी बढ़ती चली गई। 1836 अगले ही साल लिथोटाइप प्रिंटिंग जो है वो शुरू हुई थी। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, एक्सपेंसिव भी नहीं थी। उर्दू के न्यूज़पेपर्स इसको बहुत आसानी से बेयर कर सकते थे इसके एक्सपेंस को। तो जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट थी वो रिड्यूस हुई, कम पैसों में मिलने लगा, और जब कम पैसों में कोई चीज़ मिलती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उर्दू के न्यूज़पेपर्स की तादाद बढ़ती चली गई, और अट्रैक्शन भी साथ साथ बढ़ती चली गई। अच्छा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की कि वो वेस्टर्न स्टडीज को सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रमोट करें। यहाँ पे उर्दू न्यूज़पेपर को भी बड़ा अप्रोप्रिएट मीडियम कंसिडर किया गया, ताकि गवर्नमेंट जो थी वो उर्दू के ज़रिए लोगों को और बता सके कि हम किस तरह से वेस्टर्न स्टडीज़ जो है वो करवाते हैं, या वेस्टर्न स्टडीज़ को किस तरह से फैलाया जा सकता है। गवर्नमेंट क्या करती थी, यूज टू परचेज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ न्यूज़पेपर फॉर ऑफिशियल्स। जो अपने ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए कुछ न्यूज़पेपर्स ऑफिशियल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए खरीद दिया करती थी, और इस तरह से गवर्नमेंट के खाते से कुछ पैसा न्यूज़पेपर के पास जाता था, जिससे वो फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग होते चले गए। तो उर्दू न्यूज़पेपर की शुरुआत जो है वो इस तरह से सब कॉन्टिनेंट में होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसके ज़रिए लोगों ने अपनी तहरीक आज़ादी का इस्तेमाल भी को सामने भी लेकर आए, और तहरीक आज़ादी जो थी उसमें सहाफ़त का बड़ा अहम किरदार है। ये कैटेगरी या ये एक बहुत बड़ी एक अलग से टॉपिक बनता है कि तहरीक आज़ादी में हमारे न्यूज़पेपर या जर्नलिज्म का क्या किरदार रहा, और इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन चूंकि हम न्यूज़पेपर का बिल्कुल स्टार्ट ले रहे थे, तो हमें ज़रूरी था कि हम ये जान सके कि इनिशियली न्यूज़पेपर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, और सब कॉन्टिनेंट में ये किस तरह से आया। तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज की। न्यूज़पेपर को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और ये कैटेगरी इनकी अपनी फ्रीक्वेंट पब्लिकेशन के ऊपर होती है। अगर ये फ्रीक्वेंट इनकी पब्लिकेशन के ऊपर हो, तो इसमें हम हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो डेली न्यूज़पेपर्स हैं। वीकली न्यूज़पेपर होता है जो कि वीकली मैगजीन की शक्ल में आपके सामने आता है। बाई वीकली भी कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, और कुछ मंथली न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो एक कैटेगरी तो अपनी फ्रीक्वेंट पब्लिकेशन की बुनियाद पर होती है। दूसरी कैटेगरी न्यूज़पेपर की इनके साइज और इनके फॉर्मेट के हिसाब से होती है, और ये आपको दूसरी पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे पेपर्स को ग्रुप किया जाता है इनके, जैसे ये ब्रॉडशीट्स हैं, ये बर्लिनर है और ये टेबलॉइड्स हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें इनके साइज का डिफरेंस आता है। तो ब्रॉडशीट्स जो होती हैं वो 600 mm बाय 380 mm होते हैं, ये 380 mm और ये 600 mm होते हैं, ये सबसे बड़ा साइज होता है। इसके बाद टेबलॉइड को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो टेबलॉइड जो है वो आपको ये थर्ड पोजीशन पे दिखाया गया है, ये 380 mm होता है, यानी इसका यहाँ पे जो साइज होता है ये ब्रॉडशीट के बराबर ही होता है, लेकिन ये अपनी लेंथ के हिसाब से छोटा होता है, यानी ये 300 mm किया जा होता है। इसके बाद बर्लिनर, जिसको मेडी का नाम भी दिया जाता है, ये एक मिड वाली पोजीशन पे है, यानी ये सबसे छोटे से बड़ा और बड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। ये 470 mm और 315 mm का इसका साइज होता है। इसके साथ साथ एक हमारे पास ऑनलाइन एडिशन भी होता है, जो कि अपने साइज और फॉर्मेट में एक जैसे ही होता है। जाहिर है कि वो जिस तरह से भी खुलता है सामने, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जैसी जितनी स्क्रीन होती है वो उसी को ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो ये अपने साइज और फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज होती हैं, और इन कैटेगरीज को आप लोगों ने इसलिए याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर हम न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली ये न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये न्यूज़पेपर जो एजेंसी है या जो इदारा है उसकी बात करें तो इसमें ब्रूस वेस्ली का नाम आपके सामने काबिल जिक्र होगा। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर आप न्यूज़पेपर के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी ब्रूस वेस्ली का कहना ये था कि एक न्यूज़पेपर में बिजनेस के की कैटेगरी लाजमी होनी चाहिए, जो कि फ्रंट ऑफिस होता है, जो कि रिसीव करता है न्यूज़ को और जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। दूसरा कैटेगरी एक न्यूज़पेपर एजेंसी के अंदर या न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैकेनिकल पे होता है, जो कि बैक शॉप होती है। बैक शॉप का क्या काम होता है, वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। और तीसरा अहम जो होता है वो एडिटोरियल होना चाहिए, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एडिटोरियल और ओपिनियंस इन सबको देख रहा हो। ठीक है, ये आपका न्यूज़ रूम होता है, यहाँ पे मेजर लोग बैठे काम कर रहे होते हैं। तो ब्रूस वेस्ली ने बेसिकली बिजनेस, मैकेनिकल और एडिटोरियल के हिसाब से, यानी तीन फंक्शंस के हिसाब से न्यूज़पेपर के डिपार्टमेंट्स को क्लासिफाई किया था। यहाँ पे हम इन मेजर डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं जो आजकल की न्यूज़ एजेंसीज में लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है। कोई भी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के बगैर नहीं चल सकता। एक अखबार के अंदर आप जितनी एडवर्टीजमेंट देखेंगे उतना ही वो अखबार सक्सेसफुल कंसिडर होता है और उतना ही वो अखबार तगड़ा होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के वो पैसे ले रहा होता है। और जाहिर है एक अखबार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। तो ये लोकल रिटेल डिवीजन इस डिपार्टमेंट के अंदर होती है। फॉरेन नेशनल डिवीजन एडवर्टीजमेंट होती है। अगर फॉरेन से कोई अप्रोच करता है न्यूज़पेपर को कि हमारा ऐड चला दें, या नेशनल अपने मुल्क के अंदर से कोई अप्रोच करता है, तो वो पेमेंट कर रहा होता है, और इसी से पूरा अखबार जो है वो चल रहा है। क्लासिफाइड का भी इसको नाम दिया जाता है। मर्चेंडाइजिंग भी से इसी सिलसिले में आ जाती है, इसी कैटेगरी में आ जाती है। तो एक एडवर्टीजमेंट है वो एक डिपार्टमेंट, एक लाइफ ब्लड होता है। अगर ये डिपार्टमेंट ठप हो जाए तो पूरा न्यूज़पेपर ठप हो जाता है, चाहे अंदर बैठी हुई टीम जितनी ही अच्छी क्यों ना हो। दूसरा डिपार्टमेंट होता है सर्कुलेशन का। ये देखता है कि शहर में इसकी कितनी सर्कुलेशन है, इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, एरिया के अंदर इसकी सर्कुलेशन कितनी है, किसी खास स्पेसिफिक एरिया में, उस एरिया में किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। और सेल्स को प्रमोट करना इसका काम है, क्योंकि जितने अखबार बेचेंगे उसका भी रेवेन्यू जनरेट होकर अखबार वाले इदारे को ही आएगा। तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट भी पैसा कमाने वाला डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी पैसा कमाने वाला डिपार्टमेंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये बेहद ज़रूरी होते हैं। इसके बाद एडिटोरियल डिपार्टमेंट आ जाता है, जिसमें हम न्यूज़ को देखते हैं, एडिटोरियल्स को देखते हैं जो छपे हुए होते हैं अखबार के अंदर, और फिर इनका अहम काम जो होता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट का, पब्लिश करना होता है न्यूज़। अगर एडिटोरियल डिपार्टमेंट किसी अखबार का माठा है, अच्छा नहीं है, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली उसकी सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी और उस अखबार को एडवर्टीजमेंट भी कम आएगी। और उसकी रीज़न क्या होगी कि उसको पढ़ने वाले कम होंगे, और जब पढ़ने वाले कम होंगे तो जाहिर है कि लोग उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट भी देना नहीं चाहेंगे, उसको खरीदना नहीं चाहेंगे, तो सर्कुलेशन डाउन हो जाएगी। तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छा होगा, अच्छी तरह न्यूज़ लगाएगा, कैची किस्म के टैगलाइंस लगाएगा, तो इससे रीडर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इसको परचेज करते हैं। और आखिरी जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जिसका काम एक न्यूज़ को कंपोज करना, उसे टाइप करना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेना, उसे उसकी प्रूफ रीडिंग करना, गलतियाँ निकालना, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जो ये काम करता है। या इसके अलावा जो भी सपोर्टिव
फैसिलिटेटिव किस्म की सपोर्ट होती है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट देते हैं। तो ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हर न्यूज़ एजेंसी के अंदर, हर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई भी न्यूज़पेपर जो निकल रहा है, जहाँ से भी निकल रहा है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। न्यूज़ एजेंसी क्या होती है? अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम न्यूज़ को सप्लाई करना। किसको सप्लाई किया जा रही होती है ये न्यूज़ सप्लाई की जा रही होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो न्यूज़ ट्रेड करती हैं। अब न्यूज़ ट्रेडर्स कौन होते हैं? न्यूज़ ट्रेडर्स कोई भी चैनल हो सकता है, कोई भी दूसरी कोई न्यूज़पेपर खुद से हो सकता है। तो न्यूज़ एजेंसी का बेसिक काम होता है न्यूज़ को कलेक्ट करना। अब ये जब न्यूज़ उनके पास कलेक्ट होकर आ जाती हैं तो कोई भी इदारा इनसे ये न्यूज़ परचेज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से रॉयटर्स को अगर आप देखेंगे तो रॉयटर्स अक्सर आप लोगों ने अखबार में कोई फीचर लिखा और उस फीचर लिख के जब आप नीचे देखेंगे तो उस पर लिखा होता है रॉयटर्स। रॉयटर्स का क्या है? ये एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। जैसे पाकिस्तान में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाहर की फॉरेन जितनी भी न्यूज़ होती हैं उनको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके अपने पास रख लेती है और फिर न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स इनसे रुजू करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये न्यूज़ जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये अपने नाम के साथ उनको प्रोवाइड करती हैं, बेचती हैं और इस तरह से ये जनरेट करती हैं अपना रेवेन्यू। और ये भी मुमकिन है, जैसे यहाँ पे बीबीसी न्यूज़ को आप देखें तो बीबीसी न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ एजेंसी अपने, वो ये भी कर सकती है कि अगर वो न्यूज़ को कलेक्ट करती है तो वो अपने ही चैनल के ऊपर उसको चला भी सकती है। जैसे कि बीबी न्यूज़ है, वो खुद अपने उसके अपने पास उसकी अपनी न्यूज़ एजेंसी है, वो जर्नलिस्ट हैं, ये सारी न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और फिर वो अपने ही चैनल को सप्लाई कर देते हैं। तो ये वो वे है जिसके ज़रिए न्यूज़ एजेंसी जो है वो काम करती है। इसका बेसिक मकसद होता है न्यूज़ को कलेक्ट करना और इसे सप्लाई करना मैगजीन्स पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, किसी पे भी जो न्यूज़ की ट्रेड करते हैं। इसे वायर सर्विस या न्यूज़ सर्विस भी कहा जाता है। पाकिस्तान में 2 बड़ी एजेंसीज काम कर रही है। एक गवर्नमेंट कंट्रोल है जिसको हम एपीपी का नाम देते हैं, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ एक प्राइवेटली ओन्ड इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी है पीपीआई। इसकी न्यूज़ भी आपको अखबारों में बहुत ज़्यादा चलती हुई नजर आएंगी, बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ ये देते हैं। तो अखबार है, चैनल है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये हर उस न्यूज़ एजेंसी को अप्रोच करेंगे जिसकी अपनी अप्रोच न्यूज़ तक बहुत अच्छी होगी और ऑथेंटिक होगी। इसके अलावा भी कई न्यूज़ एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं प्राइवेटली, जिसमें शार्प आई है, न्यूज़ NNI जिसको न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल का नाम दिया जाता है, एशियन न्यूज़ नेटवर्क है, यूनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क है, रॉयटर्स तो मैंने आपको बता दिया है। ये सारी वो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं जो कि न्यूज़ को इकट्ठा करती हैं और फिर ये ट्रेड करती हैं न्यूज़ के ऊपर, इनको आगे की तरफ भेजती हैं और इससे रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि न्यूज़पेपर क्या है, पब्लिश किस तरह से होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, न्यूज़ एजेंसी क्या होती है और इसकी हिस्ट्री के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई होप कि आप इसको ज़रूर स्टडी करेंगे और देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।